कहाँ दिखेगा मेरा मेरा कहाँ दिखेगा? नहीं, राजमान बंद कर दो। अच्छा, आपका वीडियो Yes, class. I have arranged for you. Whatever we have The study of discussed resources earlier, forms you an have to important listen part of carefully economic geography. and Resources revise are the defined topic. as a country's collective means of support. The study of resources involves man's relationship with the environment. Resources satisfy man's material needs and desires. They have a dominant influence on man's physical environment. About 2000 years ago, man was unaware of a variety of mineral resources in his environment. As recently as 250 years ago, man knew nothing about petroleum and gas reserves. Once their use was known, fossil fuels became the most precious resources. Resources have therefore certain characteristics which make them available and useful to man. In this chapter, we will study the following concepts: resources and development, conservation of resources. Resources and development. Resources are defined as a country's collective means of support. The study of resources involves man's relationship with the environment. Resources satisfy man's material needs and desires. About 2000 years ago, man was unaware of a variety of mineral resources in his environment. As recently as 250 years ago, man knew nothing about petroleum and gas reserves. Once their use was known, fossil fuels became the most precious resources. Resources have therefore certain characteristics which make them available and useful to man. Characteristics of resources. Biosphere. The resources come from our physical environment. Human beings are at the center of its one component called biosphere. Economic. Human beings make resources available through their economic activities. Social. Human institutions, industry, and society accelerate their development. Technology. It is the main human agent of transformation of materials available in nature into resources. Value of resources. Resources have economic value. They are the backbone of the economy of a nation. Their value arises on account of the following purposes. All the resources come from air, water, and land. They are made available when human beings interact with the environment. These natural materials obtained through interaction become useful and have value. Resources are the base for economic development. By utilizing resources, houses, buildings, villages, towns, cities, machines, industries, etc. can be established. Resources are essential for the economy. Resources need to be transported from their place of origin to their place of consumption, and hence they stimulate economic activities. Characteristics of resources. Based on origin. Based on origin, the resources can be classified into natural and human resources. Natural resources. These are the gifts of nature which are found useful for making the life of human beings comfortable and worth living. Natural resources include natural vegetation, soil, water, air, minerals, and even rocks. These can be of two main types: biotic and abiotic. Biotic resources. These are living resources like forests and forest products, agriculture, animals, birds, marine life, etc. Abiotic resources. These are material resources of non-living things. Examples are minerals like iron ore, copper, land resources, soils, etc. Human resources. Human beings are human resources made valuable through education, training, experience,
or in other ways so that they may become capable of making use of other resources efficiently. In fact, human resources are the most common as well as useful resources of a region or a country. Human resources do not merely mean the number of people living in an area, but how the people possess skills, education, and knowledge to develop other resources. Based on renewability, exhaustibility. Renewable resources. Renewable resources are water, forests, soil, etc. This renewability is possible only under certain conditions. Some trees may also take longer time to grow. For example, it takes between 50 to 200 years for a tree to grow in a forest. Availability of fresh and pure water in a river may be obtained under certain conditions of environment. Non-renewable resources. These resources get exhausted after use. Resources which cannot be replenished are fossil fuels such as petroleum, gas, coal, and other minerals. Based on ownership. Individual resources. These are resources privately owned by individuals or groups. For example, land owned by an individual, a family, or groups of people organized in companies. Community-owned resources. Many Adivasis do not believe in private ownership of land, forests, and water bodies. They consider these resources as owned by the community. Some other examples of these types of resources are public lands, parks, wealth, playgrounds, and panchayat ghars in urban and rural areas. National resources. These resources are owned by the government. In the past, all land, water, and other natural resources were considered to be owned by the sovereign, king, emperor, or the ruler. Even today, the government owns such resources of general public use as railways, irrigation canals, roads, and buildings. International resources. These resources are owned by international institutions like the United Nations or other regional international organizations. Based on the state of development, resources are of 4 types: potential, developed resources, stock, and reserve. Click on the given tabs to know more about them. Potential resources. These resources are found in a certain region but may not have been utilized. For example, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but these have not been utilized so far or have not been fully exploited. Developed resources. These resources have been surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. It now depends on the available technology and its feasibility to utilize these resources. Stocks. The resources are obtained from our environment. They may have limited stocks available for use. It may also be possible that we may not have the appropriate technology to mine these resources. Therefore, these resources are included in the stock. For example, water is a rich resource of energy. Reserves. These resources are in stock and can be put to many uses with the help of available know-how and technology. For example, we have the know-how of using the stocks of water generating electricity called hydroelectricity. The potential may be large or small depending on the cost involved and need. These water resources can be utilized to a limited extent. Development of resources.
Hello class. Okay, so I think you all have understood well that how many types of resources on different bases, isn't it class? So start next topic, development of resources. Okay, हम लोगों ने अभी ये जान लिया कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज है। अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, development of resources. Is it visible class? Now, today's topic, which we have to understand already, whatever we have discussed, just we seen in the video. Now, next page number 3, development of resources. Okay, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. क्या बोल रहा है कि जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है, वो मनुष्य के अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल के लिए तो बहुत ही जरूरी है, उसके साथ साथ ही जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता है, हम लोग यही मानते हैं कि जो भी रिसोर्सेज है, हवा, पानी, जमीन, जंगल, ये प्रकृति के मुफ्त उपहार है, ये प्रकृति की मुफ्त देन है। कोई भी चीज हम लोगों को फ्री में मिलता है तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते, हम लोग उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। आपको जो भी फ्री में पानी मिल रहा है तो पानी बर्बाद किए जा रहे हैं, जंगल की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है कि ये तो हमेशा के लिए है, फ्री में मिल रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं, जितना भी यूज करेंगे ये खराब या खत्म, समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ है? जब से हम लोगों ने इसको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर समझने का भूल किया है, उसका परिणाम ये हुआ है, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज देम indiscriminately and this has led to the following major problem. जो अंधाधुंध हम लोगों ने इसका यूज शुरू कर दिया है, इसको मुफ्त का उपहार समझने के साथ, जिससे कि पर्यावरण में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं? 3 मार्क क्वेश्चन। द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग किस प्रकार से इन्वायरमेंट का यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, उससे कौन कौन से प्रॉब्लम आ गए हैं। तो पहला प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि जो कुछ लोगों के लालच को संतुष्ट करने के लिए, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कुछ फ्री में मिलता है तो हम उसका ज्यादा सब कुछ ले लेना चाहते हैं। तो कुछ जो लालची लोग हैं वो रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा दोहन करके ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, अपने आप को रिच बनाने के लिए, अपने लालच को संतुष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? डिप्लीशन हो रहा रिसोर्सेज के, उसके चलते बहुत ज्यादा ले लेंगे, सब निकाल लेंगे रिसोर्सेज, सारे संसाधनों का, तो उसका डिप्लीशन होगा, निम्नीकरण हो जाएगा, उसका जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। दूसरा क्या है?
अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, लोगों का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के हाथों में, देश और दुनिया के कुछ लोगों के पास, कुछ अमीर लोगों के पास संसाधनों का इकट्ठा हो जाना, कुछ लोगों के हाथों में चला जाना, यानी कि कुछ लोगों के कंट्रोल में हो जाना। few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have-nots. एक संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, किसी के पास कोई हैव, किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, कुछ देशों के पास, कुछ व्यक्तियों के पास, बड़ी बड़ी कंपनी जिसका मालिकाना हक है वो रिसोर्सेज को लेते हैं, और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है उनके कंट्रोल में है पेट्रोलियम, कोयला, गैस, नेचुरल गैस, अदर रिसोर्सेज कुछ इंडिविजुअल, कुछ ही देशों के हाथों में है, जिससे कि सोसाइटी, हमारा पूरा समाज, पूरी दुनिया गरीब देश और अमीर देश के बीच में बट गई है। और रिच एंड पुअर, कुछ कंट्रीज बहुत रिच है क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनका डेवलप करने का टेक्नोलॉजी है, उसको बेच के वो बहुत सारा इनकम ले रहे हैं, तो ये रिच हो गए हैं। कुछ पुअर है, या तो उनके पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स है तो उनको डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके वजह से दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ है कि कुछ हाथों में, कुछ लोगों के कंट्रोल में हो जाने से सोसाइटी डिवाइड हो गई। सोसाइटी किस में डिवाइड हो गई है? दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ है? Have and have-nots or rich and poor. Okay. Third, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है संसाधनों का, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिना सोचे समझे उससे पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पे इकोलॉजिकल क्राइसिस, बहुत सारे पर्यावरणीय प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। क्या क्या संकट आ गया है, कौन कौन सा क्राइसिस आ गया है? ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग जान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, दीज आर द problem created by the exploitation of resources by the human being discriminately. अंधाधुंध दोहन करने से, रिसोर्सेज का यूज करते जाने से, बिना सोचे समझे, बिना आगे फ्यूचर का प्लान किए हुए, बिना बचाए उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे संकट खड़े हो गए, बहुत सारे क्राइसिस आ गए हैं, जिसमें कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है वहां से जंगल कट जा रहे हैं, तो जमीन बंजर बनते जा रही है, रेगिस्तान फैलते जा रहा, पोल्यूशन इतना ज्यादा मात्रा में फैल गया है। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. Very important line कि समतावादी सबको समान रूप से रिसोर्सेज का बंटवारा करने के लिए हम लोगों ने अभी देखा कि देश और दुनिया में कुछ लोगों के हाथों में, कुछ देशों के हाथों में सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, और कुछ के पास इसकी कमी है, स्कार्सिटी है, जिससे कि वर्ल्ड का सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड रिच और पुअर के बीच में बटा हुआ है। तो इसके चलते क्या है, बैलेंस एक चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, जिसको रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, ताकि इक्वली रिसोर्स का फायदा सभी देशों, सभी लोगों को, पूरे समाज को मिल सके। इसलिए न सिर्फ उसके लिए जरूरी है बल्कि और किसके लिए, जब फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, विश्व शांति के लिए भी जरूरी है, वरना रिच और पुअर के बीच में ये लड़ाई चलते रहेगी और शांति नहीं हो पाएगी। इसके लिए भी जरूरी, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, अगर यही हाल जारी रहा कुछ लोगों के द्वारा और कुछ देशों के द्वारा, इसी तरह अंधाधुंध रिसोर्सेज का यूज किया जाते रहा, तब क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन
डेंजर। हमारा जो धरती है उसका भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। कुछ लोग अंधाधुंध उसका दोहन करते जाएंगे, उसका यूज करते जाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। कोई प्लानिंग नहीं रहेगी उसको बचाने का, कोई इन लोगों के पास प्लान नहीं रहेगा तो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, रिसोर्सेज क्या बच पाएंगे। हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में इसका भी एक वीडियो देखेंगे कि क्यों जरूरी है और हम लोग कैसे रिसोर्स को प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। जो अंधाधुंध या जो डिफरेंसेस हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग कैसे करना है उसको अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. जीवन के हर रूप के अस्तित्व के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, सतत के लिए, आगे भी ऐसा चलते रहे। जो जीवन चक्र है धरती पे, जो रिसोर्सेज है, उसका भंडार है, उसको न्यायपूर्ण तरीके से जुडिशियसली यूज करके, प्लान करके करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों के बीच में रिसोर्स का बंटवारा हो सके और उसका डेवलपमेंट किया जा सके। क्योंकि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स का डेवलप होना जरूरी है। और डेवलपमेंट तभी होगा जबकि इसका सही सही प्लान करके, एक प्रोग्राम बना के इसका यूज करने का तरीका बताया जाए। क्योंकि अभी तक कुछ लोग और कुछ देश इसका अंधाधुंध यूज कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी कमी को झेल रहे हैं। ऐसा है ना, कुछ देशों के पास, आप ही देखिए आपके देश में कौन कौन से ऐसे राज्य है जो कि मिनरल्स में, रिसोर्सेज में बहुत रिच है, कोई बता सकते हैं? एनीवन कैन टेल मी? सम स्टेट्स ऑफ इंडिया are rich in natural resources. Can you name some states of our country? Anyone? Alankrita? Sunny? Srishti Raj, you have not mentioned your class. Please mention your class. Aditya Singh, please mention your class. So, sustainable existence is a component of sustainable development. ठीक है, जो हमारा जीवन का सतत जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सतत विकास जरूरी है। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? इट इज द डेफिनेशन यू हैव टू लर्न। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ऑलरेडी यू हैव लर्नड इट इन क्लास 8 दैट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत जो आर्थिक विकास का मतलब होता है, ऐसा विकास होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। हम लोग अंधाधुंध जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और आगे फ्यूचर का बिना प्लान किए, उसका बिना ख्याल रखे, उसके बारे में बिना विचार किए सिर्फ और सिर्फ यूज करते जा रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, जिससे कि हमारा एग्जिस्टेंस, अर्थ का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, हम लोग एंड पे आ जाएंगे। तो बिना डैमेज किए हुए इन्वायरमेंट को, जो अभी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्स हम ला के घर पे रख ले, अपने देश में रख ले, उसका कोई यूज ही ना करे और वो आगे तो चलते जाएगा, लेकिन जो अभी प्रेजेंट है वो डेवलप नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट के जरूरत, जो आज जरूरी चीज है उसका यूज ना करे, उसका यूज तो करे, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए और ऐसा यूज होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, कोई वो डैमेज ना हो। ऐसा जो रिसोर्स प्लानिंग, जो रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ओके,
in the present should not compromise with the needs of the future generation. आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको आगे के लिए भी बचा हुआ रहना चाहिए, है ना। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के आगे भी आने वाले मानव जाति को वो संसाधन मिल सके, ऐसा यूज करें। तो हमारी जो जरूरत है उसको तो पूरा करे ही, लेकिन उसका ऐसा यूज करे कि आने वाले लोगों के लिए भी वो बचा रहे, तभी तो डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा कि रिसोर्स बचेगा ही नहीं, तो फिर किस चीज का डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं। हमारे देश और दुनिया में बहुत सारे ऐसे मेजर्स, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे पता चलता है कि हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए किस तरह प्लानिंग कर रहे हैं। एक यहाँ दिया हुआ है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। हाँ, अर्थ सम्मेलन हुआ 1992 में, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro. कहाँ है Rio de Janeiro? Anyone can tell me? It is the capital of which country? Students, please send your answer through message box. Yes, Alankrita, Jharkhand, Chhattisgarh is, both the states are rich in minerals. Okay, but I am asking Rio de Janeiro, the capital city, belong to which country? This city is in Brazil. Okay, Brazil का है capital Rio de Janeiro. For the first international Earth Summit, देश का दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय अर्थ समिट हुआ, पृथ्वी सम्मेलन। The summit was convinced for, ये जो संसद बनी, ये जो सम्मेलन हुआ वो किस लिए हुआ था? For addressing urgent problems of environmental protection. ये जो अभी अर्जेंट जो है, अभी वर्तमान में जो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है, ठीक है ना, उसके लिए एनवायरमेंट का संरक्षण के लिए बहुत जरूरत है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे जो भी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। वहां पर 100 से भी ज्यादा देश और दुनिया के स्टेट से हेड लोग मिले और पर्यावरण के संरक्षण पर और पूरे विश्व में भी जो भी सामाजिक आर्थिक परेशानियां चल रही हैं उस पर बहस करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया। इसमें क्या किया गया? The assembled leaders signed the declaration on global climate change. जितने लीडर्स लोग 100 से भी ज्यादा जितने भी लीडर्स लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया। साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, हमारी धरती गर्म हो रही है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पे, बहुत सारे एनिमल्स, जंगल सब विलुप्त हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted agenda 21. Very important line. सब लोगों ने मिलकर के ग्लोबल फॉरेस्ट के लिए
पूरे वैश्विक जो वन है उसके सिद्धांत का रूपरेखा तैयार किया, ठीक है ना, और एक एजेंडा तैयार किया जिसका नाम दिया एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, कैसे प्लानिंग करके रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रह सके और आज का जरूरत को भी पूरा किया जा सके। इसके लिए उन लोगों ने एजेंडा 21 पे साइन किया। तो व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है, उसका मेन फीचर्स अलग से 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है या 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, ओके। एजेंडा 21, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. Please write down the full form of UNCED. Okay, United Nations Conference, okay, on Environment and Development. वर्ल्ड लीडर ने 1992 में यही रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जितने भी देश के प्रमुख लीडर्स थे, कंट्री हेड्स थे, उन लोगों ने एजेंडा 21 पे एक घोषणा पत्र पे साइन किया, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims to achieve global sustainable development. इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर ग्लोबल, हाँ, सतत विकास, किस तरह से रिसोर्सेस का विकास किया जाए जो कि आगे हमारे अर्थ के और ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है। कौन कौन सा ऐसा मेजर्स, कौन कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए, उस घोषणा पत्र पर इन लोगों ने साइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेज। किस पर इस एजेंडा पर बात की गई, क्या क्या पे? एनवायरमेंटल डैमेज, जो पर्यावरण की क्षति हो रही है, डैमेज हो रहा है, उसको कैसे पूर्ति किया जाए, उसको कैसे भरा जाए। उसके बाद पॉवर्टी, पूरे विश्व भर में जो गरीबी है वो एक समस्या है, उसको कैसे कम किया जाए। डिजीजेज, रोगों के रोकथाम के लिए थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। तो इसके लिए ये जो वैश्विक प्रॉब्लम्स है वो कोई एक देश, एक कंट्री तो खत्म कर सकता नहीं है। तो एजेंडा 21 के अंतर्गत सारे देश मिलके कोऑपरेशन यानी कि सहयोग के द्वारा सबका ऑन कॉमन इंटरेस्ट, सबका कॉमन इंटरेस्ट है, सबका ये नहीं कि मेरे देश में बीमारी ये नहीं है तो हम उसके लिए प्रयास नहीं करें। तो सब कोई को, सारे देशों को मिलजुल के इन समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाने होंगे, उनके लिए प्लान करना होगा। इसकी जरूरत पर एजेंडा 21 में जोर दिया गया है ना। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबका मिला जुला उत्तरदायित्व है, कोई पूरा देश और दुनिया के कोई भी देश इससे अपना मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट, एक इसका जो एजेंडा 21 का है उसका मेन उद्देश्य क्या था, इस समिट का तो उद्देश्य था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट आप जानते हैं, पंचायत होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो हर एक लोकल गवर्नमेंट, नीचे लेयर के भी लोकल गवर्नमेंट भी अपना एरिया के अकॉर्डिंग एजेंडा 21 अपना एक लोकल एजेंडा बनाए कि उसके एरिया के लिए, उसके एरिया के एनवायरनमेंट के लिए, सारे प्रॉब्लम के लिए क्या क्या एजेंडा हो सकता है, कौन कौन से प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या उनके पास मेजर्स। तो यही है एजेंडा 21। यू हैव टू राइट डाउन द टॉपिक एजेंडा 21, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग आपको पता है कि जुडिशियसली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके यूज के लिए, रिसोर्स के यूज के लिए प्लानिंग की जरूरत है। कोई भी
प्लान तभी सक्सेसफुल होता है, उसको पहले से अच्छे से सोच समझ के डिस्कस करके किसी चीज को प्लान करे, तभी उसको कोई भी एम को अचीव किया जा सकता है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि न्याय संगत उपयोग के लिए, संसाधन का सही उपयोग हो सके, इसके लिए प्लानिंग की बड़े पैमाने पर जरूरत है। इट हैज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में तो इसका और भी बहुत ज्यादा महत्व है। विच हैज एनॉमरस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यहाँ हमारे में देश में जो भी संसाधन मौजूद है उसमें बहुत सी विविधता है, डाइवर्सिटी है। किसी एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है तो किसी एरिया में टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, किसी में कोई रिसोर्सेज है, किसी की कमी है, किसी में किसी की कमी है। तो हमारा बहुत डाइवर्स फीचर है, लैंडफॉर्म्स है, एरियाज है। तो यहाँ तो और भी ज्यादा हमारे देश के जैसे रिसोर्स प्लानिंग की ज्यादा जरूरत है। क्यों? इसलिए these are regions, there are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कुछ प्रकार के संसाधनों में बहुत समृद्ध है, बहुत रिच है, लेकिन कुछ दूसरे तरह के संसाधनों में वहाँ कमी है, यानी कि किसी रीजन में कोई रिसोर्स पाया जाता है, किसी रीजन में किसी रिसोर्स की भारी कमी है। तो ये विविधता, ये डिफरेंस देखने को हमारे देश में मिलता है। इसके लिए चाहिए कि ऐसा प्लानिंग बनाए कि सभी रीजन का डेवलपमेंट हो सके और सब में इक्वली उसका प्लान करके उसका डेवलपमेंट किया जा सके, जिससे कि पूरा कंट्री डेवलप हो, इकोनॉमिक डेवलप हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। ओके, तो कुछ देश क्षेत्र है जो बहुत रिच है रिसोर्सेज में, कुछ एरियाज हैं जहाँ की बहुत स्कार्सिटी है ना। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources। कुछ ऐसे regions हैं जो कि आत्मनिर्भर हैं अपने रिसोर्सेज में, वहाँ सारे संसाधन मौजूद है। Which have और क्या है, in terms of the availability of